Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So my dear students, today we are going to cover the lecture regarding the software quality assurance and the major concepts related to the software quality assurance, which is also given as an assignment to the first 1 to 20 students group of people. This is the first lecture of SQA, and the next lecture will also be regarding the software quality assurance, in which we will talk about more about the testing. And today's lecture is about the basic concepts of quality assurance. So what is quality? We define quality as a characteristic or attributes of something. Example programs like include complexity, number of functions, line of code, etc. So quality is something that of an attribute of any product of anything. इसको कहते हैं quality or characteristic. Here we talk about two kinds of quality, which are quality of design, that designers specify for an item. It encompasses requirements, specification and design of the system, किस तरह से वो डिज़ाइन किया गया है. And quality of conformance, जिसमें we talk about whether जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, that is according to the design specification or not. And the definition is the degree to which the design specifications are followed during manufacturing. It is an issue focused on implementation. If implementation follows the design, अगर implementation exact design को follow करेगी, resulting system meets its requirements and performance goal, तो system जो है वो अपनी system requirements को meet करेगा और performance goals को meet करेगा. And conformance quality will be high, and quality जो है उसकी high होगी. And user satisfaction equal to compliant product plus good quality plus delivery within budget and schedule. यूज़र की सेटिस्फेक्शन क्या है? यूज़र को क्या चाहिए कि कंप्लायंट प्रोडक्ट जो उसके हिसाब से कंप्लायंट हो, जो उसकी नीड के हिसाब से कंप्लाई करे, अच्छी क्वालिटी हो और डिलीवरी विद इन द बजट एंड स्केड्यूल, और उसकी बजट और स्केड्यूल के अंदर, जो इसको टाइम बॉक्सिंग कहा जाता है कि बजट के अंदर हो और टाइम के दरमियान हो, कि जो टाइम हम कहें डिलीवरी का उसी टाइम पे वो डिलीवर हो. What is quality control? Quality control involves series of inspections, reviews, tests used throughout the process. इंस्पेक्शन करें कि चेक करते रहें, कहते हैं ना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, वो चेक करते रहें कि भाई क्वालिटी मेंटेन हो रही है प्रोडक्ट की कि नहीं. उसको रिव्यू करते रहें, उसको टेस्ट करते रहें थ्रू आउट द प्रोसेस. जिस तरह अगर कोई प्रोडक्ट बनती हुई जा रही है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी है जो कि बेकिंग कोई बिस्किट्स बनते हुए जा रहे हैं, तो वो बिस्किट्स बनते हुए पहले उसकी शुगर को चेक करें, शुगर ठीक है कि नहीं. जब वो जो आटा गूंदा जाता है, आटा की चेक करें इसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं. फिर जो है आटे गूंदने के बाद जो कि बिस्किट्स अगर बनते हैं तो उसकी बिस्किट्स की जो शेप है उसकी क्वालिटी चेक करेंगे ठीक है कि नहीं. फिर वो बेक होने के बाद वो चेक करें, टेस्ट करेंगे बिस्किट की क्वालिटी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है कि नहीं. फिर वो पैकेजिंग के लिए जाए तो पैकेजिंग की क्वालिटी ठीक है कि नहीं, कि वो प्रिजर्व हो सके, ऐसा नहीं कि वो पैकेजिंग उसकी लूज़ हो या ख़राब हो. सो ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स. इट इंक्लूड्स द फीडबैक लूप टू द प्रोसेस. अ की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज दैट ऑल वर्क प्रोडक्ट हैव डिफाइंड specifications are compared, and feedback loop is essential to minimize the defects produced. So it is a quality control is a feedback loop जो कि स्पेसिफिकेशन कंपेयर होंगी प्रोडक्ट के साथ, और ताकि डिफेक्ट्स जो है वो मिनिमाइज हो सके. क्वालिटी एश्योरेंस असेस द इफेक्टिवनेस. अब थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस. वी टॉक्ड अबाउट क्वालिटी, वी टॉक्ड अबाउट क्वालिटी कंट्रोल, वी टॉक्ड अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस. The quality assurance assess the effectiveness and completeness of quality control activities. So quality assurance क्या है? जो अश्योर हो सकेंगे जो क्वालिटी के पूरे मेजर्स हैं और उसकी completeness है वो हम चेक कर सकें. The goal of quality control is to provide management with the data necessary about product quality, gaining confidence that product quality is meeting the goal. कि मैनेजमेंट को हम सेटिस्फाई कर सकें कि प्रोडक्ट जो है वो अपनी क्वालिटी को मीट कर रही है, और टू गेन द कॉन्फिडेंस कि वो अपने जो है अकॉर्डिंग टू द गोल जो मीट कर रही है प्रोडक्ट के हवाले से कि नहीं. इफ़ नॉट, इट्स मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस द प्रॉब्लम एंड अप्लाई द नेसेसरी रिसोर्सेज टू रिजॉल्व क्वालिटी इश्यूज. तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे कहाँ मसला आ रहा है, चाहे वो बिस्किट की पैकेजिंग में मसला आ रहा है, बिस्किट की
बेकिंग में मसला आ रहा है, या बिस्किट की शेप में मसला आ रहा है, या बिस्किट की आटे में मसला आ रहा है, जो पीछे जो रॉ मटेरियल है उसमें मसला आ रहा है, ताकि वो मसले ताकि जो इशू जो है उसको जो है वो रिजॉल्व हो सके। एंड नाउ वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। वी टॉक्ड अबाउट द क्वालिटी, वो टॉक्ड अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल, वी टॉक्ड अबाउट द क्वालिटी एश्योरेंस। नाउ वी टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। Software quality assurance is composed of variety of tasks associated with the two different aspects. The software engineers who do technical work and an SQA group that has responsibility for quality assurance. मतलब वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एक वो जो टेक्निकल वर्क करते हैं, जो डेवलपमेंट करते हैं, और इसके अलावा SQA ग्रुप जो कि उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। हर सॉफ्टवेयर हाउस में इस तरह के लोग होते हैं, और अभी तो इस तरह की सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिसके अंदर सिर्फ SQA के होते हैं टीम, जो कि सिर्फ दूसरे के सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। मतलब ऐसी कंपनी जिनको सॉफ्टवेयर बना के दिया जाता है उसको चीज़ को टेस्ट करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा जॉब है। जो मैंने आपको कहा था कि हमारे डिपार्टमेंट में सर फ़हीम है, वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर, वो हेड थे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के ग्रुप के। 8 साल वो उन्होंने काम किया सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से, जिनका काम है प्लानिंग, ओवरसाइट, रिकॉर्ड कीपिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। Software engineers address quality and perform quality assurance and quality control activities by applying solid technical methods and measures, conducting formal technical reviews and performing well-planned software testing. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि क्वालिटी को मेजर करते हैं या क्वालिटी पे काम करते हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। बाय अप्लाइंग टेक्निकल मेथड्स एंड मेजर्स, कंडक्टिंग फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़, रिव्यू करना, एंड परफॉर्मिंग वेल प्लान सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जो कि मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग, आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एक्सेट्रा, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। वी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज टेस्टिंग मेथड्स, रिग्रेशन टेस्टिंग इन टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, प्रिवेंशन कॉस्ट। अगर हम क्वालिटी को के से जो एरर जनरेट हो सकते हैं उनको प्रिवेंट करें तो उसके क्या होगा, क्वालिटी प्लानिंग करनी पड़ेगी, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ करने पड़ेंगे, इक्विपमेंट को टेस्ट करना पड़ेगा, और लोगों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जो कि टेक्निकल हैं या क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप में। इंटरनल फेलियर कॉस्ट इंक्लूड, अगर कोई क्वालिटी अगर नहीं मेंटेन होगी तो उसकी जो क्या होगा, रिवर्क करना पड़ेगा, उस डिफेक्ट्स होंगे उनको रिपेयर करना पड़ेगा, एंड फेलियर मोड एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसका ओरिजिन ऑफ एरर और ओरिजिन ऑफ डिफेक्ट जो है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जहाँ पे फेलियर हो रहा है वहीं पे एरर हो सकता है। कोई प्रीवियसली किसी टास्क से एरर जनरेट हो, उस वजह से वो प्रोपोगेट हो अप टू दिस स्टेप और यहाँ पे आके फेलियर हो। और एक्सटर्नल फेलियर्स कॉस्ट आर कंप्लेंट रेजोल्यूशन, प्रोडक्ट रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट, हेल्पलाइन सपोर्ट और वारंटी वर्क। एक्सटर्नल फेलियर्स क्या आ जाते हैं, कंप्लेंट रेजोल्यूशन कि आप कंप्लेंट को रिजॉल्व करें, प्रोडक्ट में कोई मसला आ रहा है वो रिटर्न होगी तो उसकी रिप्लेस करना पड़ेगा। हेल्पलाइन सपोर्ट होगी कि आप सपोर्ट दें हेल्पलाइन की, कि लोग आपसे जो मसला पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, एंड वारंटी वर्क, वारंटी आप क्लेम करने के चलें। तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जो है वो आपकी क्वालिटी की कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं। रोल ऑफ द SQA ग्रुप, अब जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो ग्रुप है जिनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी को मेंटेन करना, उनका क्या काम है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका क्या काम है, प्रिपेयर एन SQA प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट। जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसके हवाले से दे नीड टू प्रिपेयर द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्लान, एंड दैट प्लान आइडेंटिफाइज इवैल्यूएशंस टू बी परफॉर्म्ड, ऑडिट एंड रिव्यूज टू बी परफॉर्म्ड, स्टैंडर्ड्स दैट आर एप्लीकेबल टू द प्रोजेक्ट, कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं, ISO 9000, ISO 9001, ISO 2001 जो कि आप सुनते रहते हैं। प्रोसीजर्स फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग, प्रोसीजर डिफाइन होने चाहिए, जब एरर हो तो किस तरह से रिपोर्ट हो और किस तरह से ट्रैक कर सके। क्योंकि जब आप एक ग्रुप जो प्रोडक्ट बना के या फीचर बना के SQA के ग्रुप को देगा, तो SQA ग्रुप जो है जब एरर रिपोर्ट करना है, एरर फाइंड आउट करते हैं, तो वो एरर उनको रिपोर्ट किस तरह से करेंगे ताकि वो चीज़ करेक्ट करें। एक लिहाज से जो एक SQA का और टेक्निकल ग्रुप का जो है वो जो रिलेशनशिप है वो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है कि उनको बनती भी नहीं है साथ में और उनको रहना भी साथ में, या पुलिस चोर का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो डेवलपर जो है बना के देता है और SQA जो उसको उसमें कीड़े निकालता है, ढूंढता है, और फिर डेवलपर को कहता है इसको चीज़ को ठीक करो। तो डेवलपर को SQA का बंदा पसंद नहीं होता
और एसक्यू को डेवलपर का बंदा पसंद नहीं होता कि यार ये अजीब स्टूपिड किस्म का बंदा ऐसा के एरर क्यों जनरेट करता है। तो ये दोनों का हेट एंड लव रिलेशनशिप है। सो डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द एसक्यू ग्रुप, डॉक्यूमेंटेशन होगी। अमाउंट ऑफ फीडबैक प्रोवाइडेड टू द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम, उस प्रोजेक्ट टीम को दिया जाएगा फीडबैक कि ये एरर हैं, ये बग्स हैं, इसको प्लीज़ रिमूव करें। सेकंड एक्टिविटी इज पार्टिसिपेट्स इन डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। The SQA group reviews the process description for compliance with organization policy। जो SQA group है वो जो है ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिसी है उसकी जो है वो कंप्लायंस के हवाले से जो है वो रिव्यू करेगा। इंटरनल सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स, एक्सटर्नल सॉफ्ट इम्पोज स्टैंडर्ड ISO 9000 वगैरह, इंटरनल सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड जो कि इंटरनली जो सॉफ्टवेयर के जो डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर उसमें काम करने का तरीका ये कि जो भी प्रोग्राम बनाओ उस वहाँ पे उसके कमेंट ज़रूर लिखो, उसकी डेट और वर्जन ज़रूर लिखो, जिसने वो प्रोग्राम बनाया वो ज़रूर लिखो। तो जो डेवलपर ये चीज़ नहीं लिखेगा मीन्स ही और शी इज़ नॉट मीटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड जो इंटरनल स्टैंडर्ड है एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान। ओके, इट कंटिन्यूज रिव्यूज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज टू वेरीफाई कंप्लायंस विद द डिफाइंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। रिव्यू करना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ को ताकि हम वेरीफाई कर सकें उसके डिफाइंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस के, आइडेंटिफाइज डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रैक्स डेविएशंस फ्रॉम द प्रोसेस एंड वेरीफाइज दैट करेक्शंस हैव बीन मेड। डेविएशंस फ्रॉम द प्रोसेस ऐसा तो नहीं कि डेवलपमेंट में वो कोई थोड़ा सा साइड से निकल रहा हो, चीज़ों को फॉलो ना कर रहा हो। ऑडिट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर वर्क प्रोडक्ट्स टू वेरीफाई कंप्लायंस विद दोज डिफाइंड एज पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ऑडिट होना, ऑडिट क्या होता है जब चीज़ बन के आती है तो चेक करना कि सही तरीके से उसमें कंप्लाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हर कंपनी में, फाइनेंशियल में, आपके जो है वो बैंकिंग में, आपके एजुकेशन में, हर जगह पे ऑडिट होता है। रिव्यू सिलेक्टेड वर्क प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाइज डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रैक्स डेविएशंस, वेरीफाइज दैट करेक्शंस हैव बीन मेड। कि जो है वो रिव्यू सिलेक्टेड वर्क प्रोडक्ट्स उनमें से चूज़ करना कौन सी प्रोडक्ट्स पे जो है वो उसको चेक करना, आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंट करना कहाँ का मसला आ रहा है, ट्रैक डेविएशंस कहाँ से वो चीज़ ठीक नहीं जा रही और उसकी करेक्शंस जो है वो उसको चेक करना अगर किसी ने करेक्शन कर दिए हैं उसकी। पीरियडिकली रिपोर्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ इट्स वर्क टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, और वक्फन ब वक्फन जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को उसकी रिपोर्ट देते रहना कि ये एरर आते रहें एंड दिस इज करेक्टिव मेजर्स हैज बीन टेकन इन ऑर्डर टू इंश्योर द क्वालिटी। Ensures that deviations in software work and work products are documented and handled according to the documented procedure। इस चीज़ को इंश्योर करना कि सॉफ्टवेयर वर्क जो है वो डॉक्यूमेंट हो और अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर हो। रिकॉर्ड्स एनी नॉन कंप्लायंस एंड रिपोर्ट्स टू सीनियर मैनेजमेंट, और अगर कोई आइटम है जो कि ट्रैक कर रहे हैं कि वो नॉन कंप्लायंस हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, कोई प्रॉब्लम आ रही है जो कि रिपोर्ट करने के बावजूद भी रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर आप उसकी अपर सीनियर मैनेजमेंट के साथ रिपोर्ट करना कि भाई ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं करी, दिस नीड टू बी करेक्टेड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस गोल्स। व्हाट आर द गोल्स? वी डिस्कस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको अचीव क्या करना है इन एंड रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी, द करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स मॉडल will have a strong influence on the quality of all work products that follow। requirements quality, correctness के requirements के हिसाब से वो correct हो रहा है कि नहीं, complete है कि नहीं, कोई चीज़ missing तो नहीं, ऐसी requirement को जो यूजर ने कही को missing तो नहीं, and consistent है मतलब contradict तो नहीं कर रहा कि जो चीज़ हम requirements कही गई है उस हिसाब से follow हो रहा है कि नहीं हो रहा। design quality, every element of the design model should be assessed by the software team to ensure that it exhibits high quality and that the design itself conforms to the requirements। So every element of the design model जो है उसको असेस किया जाएगा सॉफ्टवेयर टीम की तरफ से ताकि वो इंश्योर हो कि वो हाई क्वालिटी को मेंटेन कर रहा हो एंड इट शुड कंफर्म द रिक्वायरमेंट्स। कोड क्वालिटी, सोर्स कोड एंड रिलेटेड वर्क प्रोडक्ट्स other descriptive information must conform to local coding standards and exhibit characteristics that will facilitate maintainability। तो सोर्स कोड और रिलेटेड वर्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोकल कोडिंग स्टैंडर्ड जो फॉलो करें कि भाई फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने कहा कि कमेंट्स उसको लिखने या वेरिएबल्स का नाम किस तरह से लिखना है, अपर केस लिखना है, लोअर केस लिखना है, कैमल केस लिखना है, जो भी स्टैंडर्ड है कोड का उस चीज़ को फॉलो करना है। एंड क्वालिटी कंट्रोल इफेक्टिवनेस, अ सॉफ्टवेयर टीम शुड अप्लाई लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ वे दैट हैज़ द हाईएस्ट
लाइकलीहुड ऑफ अचीविंग अ हाउ क्वालिटी रिजल्ट, अ सॉफ्टवेयर टीम अपनी लिमिटेड रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो कोशिश करना है कि हाई क्वालिटी को जो है मेंटेन करना है। स्टैटिस्टिकल एसक्यूए, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस और उसकी मेजरमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी। स्टैटिस्टिकल एसक्यूए क्या होता है कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल डिफेक्ट्स, जो मसला है उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। फाइंड द काजेज ऑफ द डिफेक्ट्स, एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो किस वजह से ये डिफेक्ट आया है। मूव टू प्रोवाइड फिक्सेस फॉर द प्रोसेस, और रिएक्टिव मूव करना या प्रोएक्टिव मूव करना ताकि उन डिफेक्ट्स को जो है वो फिक्स किया जाए। Statistical SQL consists of information about software errors and defects is collected and categorized. Error और defects के बारे में information जो collect की जाती है वो characterize की जाती है। An attempt is made to trace each error and defect to its underlying cause. Non-conformance to specification, design error, violation of standard, poor communication with the customer. These are the example of errors और या उसके defects हैं। उसको ट्रेस करना, जो मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे फेलियर हो रहा हो जहाँ पे एरर जनरेट हो रहा हो वहीं पे जो है वो एरर हो, बल्कि एरर जो है प्रोपोगेट होते हैं। हो सकता है उसके 2 या 3 स्टेप पहले से एरर आ रहा हो, या किसी एक्सटर्नल एंटिटी की तरफ से, अफेयर्स की तरफ से या प्रोसेस की तरफ से एरर आ रहा हो, या यूज़र इनपुट की तरफ से एरर आ रहा हो। सो वट एवर द काज वी नीड टू आइडेंटिफाई द काज। जिस तरह से कहते हैं ना कि खांसी है या बुखार है, तो हमें ट्रीटमेंट खांसी का बुखार से ज़्यादा खांसी किस वजह से हो रही है उससे मुख्तलिफ वजह हो सकती है। प्रोडक्टिव कफ होती है, ड्राई कफ होती है, या बुखार होता है तो बुखार किस वजह से हो रहा है। मलेरिया का बुखार है आपके पास, गले का दर्द है, या कोई गले की वजह से आया है, या इन्फेक्शन की वजह से बुखार। तो बुखार इज़ द मसला तो बुखार का है, लेकिन उसकी वजह से किसकी वजह से वो आ रहा है तो वो हमें फाइंड आउट करना है। Using the Pareto principle, 80% of defects can be traced to 20% of all possible causes. Isolate the 20% the vital flaw. तो ऐसा कह रहा है कि वो 80% आप जो डिफेक्ट आ रहे हैं वो will go trace back to 20% of the possible causes, जिसकी वजह से यानी कि छोटे से 20% के काज ऐसे होंगे जिनकी वजह से डिफेक्ट्स 80% आ रहे हैं। तो वो अगर 20% हम फिक्स करेंगे जो वाइटल फ्लॉ है तो 80% ऑफ डिफेक्ट्स हमारे रिमूव हो जाएंगे। Once the vital few causes have been identified, move to correct the problems that have caused the errors and defects. जब causes identify हो जाए तो फिर हम जाके उसको defects को errors को correct करेंगे। What is software reliability? A simple measure of reliability is mean time between failure, where mean time between failure equal to mean time to failure plus mean time to repair. यानी कि mean time to failure जो फेलियर होने का mean time है और उसको रिपेयर करने का जो है वो टाइम है, दोनों को मिलाएंगे तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो है हमें मिल जाएगा। दैट इज़ अ रिलायबिलिटी पैरामीटर। और अवेलेबिलिटी के सॉफ्टवेयर अवेलेबल कितना हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका फार्मूला क्या है। द मीन टाइम टू फेलियर डिवाइडेड बाय मीन टाइम टू बिटवीन फेलियर, और उसका परसेंटेज निकाल के कितना परसेंट जो है वो द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोग्राम इज ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम एंड इज डिफाइंड एज अवेलेबिलिटी। सॉफ्टवेयर सेफ्टी. Software safety is a software quality assurance activity that focuses on the identification and assessment of potential hazards that may affect software negatively and causes an entire system to fail. तो सॉफ्टवेयर सेफ्टी कहा जाता है तो क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी जो कि फोकस करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल हैजर्ड्स. हैजर्ड्स मीन्स लार्ज प्रॉब्लम्स जो कि सॉफ्टवेयर को नेगेटिवली जो है अफेक्ट कर रहे हैं और पूरे सिस्टम को फेल करना है. इफ हैजर्ड्स कैन बी आइडेंटिफाइड अर्ली इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, अगर वो पहले से आइडेंटिफाई हो जाए तो सॉफ्टवेयर डिजाइन फीचर्स कैन बी स्पेसिफाइड दैट विल आइदर एलिमिनेट और कंट्रोल पोटेंशियल हैजर्ड्स. तो ताकि सॉफ्टवेयर डिजाइन फीचर्स ऐसे डिज़ाइन किए जाएँ ताकि वो उसको एलिमिनेट कर सकें या उसको पोटेंशियल हैजर्ड्स को कंट्रोल कर सकें. There are two major standards of quality evaluation standards, 6 Sigma for software engineering और ISO 9000 जो है वो सॉफ्टवेयर के इन जनरल के लिए इस्तेमाल होता है. 6 Sigma for software engineering. The term 6 Sigma derived from 6 standard deviations per million occurrences applying on extremely high quality standard. और 6 Sigma methodology जो है वो 3 कोर स्टेप्स में डिवाइड की गई है. डिफाइन, मेजर एंड एनालाइज. डिफाइन किया जाता है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड डिलीवरेबल्स एंड प्रोजेक्ट गोल्स वाई वेल डिफाइंड मेथड्स ऑफ कस्टमर कम्युनिकेशन. एक कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन किया जाए और डिलीवरेबल्स को प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया जाए
और प्रोजेक्ट गोल्स को प्रॉपर तरीके डिफाइन किया जाए ताकि कस्टमर को कम्युनिकेट किया जाए। मेजर द एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड इट्स आउटपुट टू डिटरमाइन करंट क्वालिटी परफॉर्मेंस, और करंट क्वालिटी जो है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए। एंड एनालाइज डिफेक्ट मैट्रिक्स एंड डिटरमाइन द वाइटल फ्यू काजेस, और डिफेक्ट्स की मैट्रिक्स को एनालाइज किया जाए ताकि जो वाइटल फ्यू काजेस हैं उनको एनालाइज किया जाए। इफ़ एन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज इन प्लेस बट इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, अगर कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी है लेकिन उसकी इम्प्रूवमेंट है तो 6 सिग्मा सजेस्ट 2 एडिशनल स्टेप्स, तो उसको क्या कहते हैं, इम्प्रूव और कंट्रोल। इम्प्रूव मीन्स द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द रूट काज ऑफ डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स का जो है रूट काज को फाइंड आउट करना, एंड कंट्रोल द प्रोसेस टू इंश्योर दैट द फ्यूचर वर्क डज नॉट रीइंट्रोड्यूस द कॉज ऑफ द डिफेक्ट्स, और फ्यूचर में ताकि वो जो है दोबारा से वो डिफेक्ट को इंट्रोड्यूस ना कर सके। If an organization is developing a software process rather than improving an existing process, the steps are, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस को बना रही है rather than कि वो एक इम्प्रूव कर रही है एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, तो क्या करेंगे, डिज़ाइन द प्रोसेस टू अवॉइड द रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट्स एंड टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। इस तरह से प्रोसेस को डिज़ाइन करना कि रूट कॉज जो है वो उसमें इफेक्ट ना हो और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करे। एंड वेरीफाई दैट द प्रोसेस मॉडल विल अवॉइड डिफेक्ट्स एंड मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट, और वेरीफाई करना कि प्रोसेस मॉडल जो है वो डिफेक्ट्स अवॉइड करे और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। द वेरिएशन इज समटाइम्स कॉल्ड DMDAV, मीन्स डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन एंड वेरीफाई। उससे पहले वाला होता है DMAIC, यानी कि डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड DMAIC। दूसरा है DMDAV, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन एंड वेरीफाई। ठीक है, I will not go too much of a detail in the software engineering Six Sigma, because you will be learning more about software quality assurance in the software quality assurance subject in the future. Another standard which is for the software that is used is ISO 9001:2000 is the quality assurance standard that applies to software engineering. The standard contains 20 requirements that must be present for an effective quality assurance system. ठीक है, वो कौन सी जो है वो स्टैंडर्ड हैं, वो हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, डिज़ाइन कंट्रोल, document and data control, product identification and traceability, process control, inspection and testing, corrective and preventive action, control of quality records, internal quality audits, training, servicing and statistical technique। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर ISO 9001:2000 स्टैंडर्ड सर्टिफाई करना है तो इसके सारे जो हैं वो टॉपिक्स को, सारे जो हैं वो स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी एश्योरेंस को जो हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। तो अक्सर जो है वो दूसरा आपने ISO 9000 वगैरह ऐसे नॉर्मल आपने सुना होगा, ये प्रोडक्ट ISO 9000 है, तो वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं और ये बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें हर क्वालिटी एट्रीब्यूट को डिफाइन किया जाता है। अगर वो प्रोडक्ट उस हिसाब से जो है वो कंप्लायंस करती है तो फिर ISO वाले ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एक स्टैंडर्ड को वो ये सर्टिफिकेट अवार्ड कर देते हैं कि भाई हाँ ये हमारे इस क्वालिटी के हिसाब से वेरीफाइबल है। तो अक्सर सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं वो भी ISO 9001:2001 सर्टिफाइड जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेस जो अपने आप को करवा देते हैं कि उनके बाद जो भी प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन हो रही है वो इन सारे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को, क्राइटेरिया को फुलफिल हो रही है। तो मतलब आप इसमें सर्टिफिकेशन कर सकते हो ISO के हवाले से कि जब SQ के लिए जाओ काम करने के हवाले से, जॉब करने के हवाले से, तो अब ये क्योंकि हम इसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को मेंटेन करवाने के लिए। इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड। जो लोग कोडिंग में ज़्यादा नहीं जाना चाहते आप, तो वो इस फील्ड की तरफ जो है वो जा सकते हैं। ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट, ISO 9000 क्वालिटी मॉडल इन सच एज ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मॉडल, इट डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी प्रोसेस which includes project quality management and the project plan and project 1, project 2, project 3 that supports quality project. I will not go detail into the quality management. ISO principle standards with benefits, इसके कुछ principles हैं कि कस्टमर फोकस होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल होना चाहिए, प्रोसेस अप्रोच होना चाहिए, सिस्टम अप्रोच होनी चाहिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, फैक्चुअल अप्रोच होना चाहिए टू डिसीजन मेकिंग, एंड म्यूचुअली बेनिफिट सप्लायर रिलेशनशिप्स होने चाहिए।
These are the ISO principle, general principle standard that should be met. Another quality factors जो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी के हवाले से जो है वो that need to be considered. These factors that affect software quality can be categorized into two broad groups. The first group factor that can be directly measured, जो कि defects uncover हो सकें during testing, and second factor that can be measured only indirectly, usability and maintainability, जब उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए या उसको maintain किया जाए. The software quality factors shown above focus on three important aspects of software product: its operational characteristics, कि वो चलता किस तरह से, its ability to undergo change, के उसको कितना हम चेंज कर सकते हैं, and its adaptability to the new environments, अगर किसी environment के हिसाब से उसको जब वो अडेप्ट करना हो तो किस तरह से हम उसको सॉफ्टवेयर को अडेप्ट कर सकते हैं. दैट इंक्लूड 3 ट्रायंगल पिरामिड, दैट इज प्रोडक्ट रिवीजन, प्रोडक्ट ट्रांजिशन एंड प्रोडक्ट ऑपरेशन, एंड द पैरामीटर्स कंसिस्ट ऑफ मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी. We will discuss about each parameter in a very brief way. That characterizes the extent to which a program satisfies its specs and fulfills the customer's mission objectives. कि वो customers के mission objectives को complete तरीके से fulfill कर पाए और उसकी specification को fulfill कर पाए या उसको satisfy कर पाए. कि customer जिस तरह से चाहता है, हाँ मेरे लिए ये requirement है, मैं ये चाहता हूँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मतलब correctly काम कर रहा है. अदर इज रिलायबिलिटी, कि जो काम तो कर रहा है क्या वो रिलायबल है, जो रिजल्ट जो है वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा. द एक्सटेंट टू व्हिच अ प्रोग्राम कैन बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन विथ रिक्वायर्ड प्रिसीशन. प्रिसीशन मीन्स एग्जैक्टली क्या वही आंसर दे रहा है कि जो चीज़ हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो चीज़ उसको देनी चाहिए. दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, कि हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि काम करने वाले जो हमें आउटपुट दे रहा है. जिस तरह मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, इक्वेशंस हो जिनको रिजॉल्व करके सॉफ्टवेयर में कि जो वो आंसर करके परफॉर्मेंस परफॉर्म करके जो रिजल्ट दें क्या वो रिलायबल है या नहीं है. कहते हैं ना न्यूज़ सोर्सेज की, यार इस चैनल की जो न्यूज़ है वो ऐसे ही भोंगियाँ मारते हैं, इनकी न्यूज़ रिलायबल नहीं है. अगर CNN है या BBC है, इस चैनल की जो न्यूज़ है तो वो रिलायबल होगी, क्योंकि वो प्रिसीशन होगी, वो जो होगी उसमें कोई चीज़ मिक्सअप नहीं होगा. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज फैक्टर इज एफिशिएंसी, द अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड कोड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. कि अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स, कितने रिसोर्सेज वो इस्तेमाल करता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि जितना जल्दी और जितना इफेक्टिवली कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए जो है वो रिजल्ट वो जनरेट करके दे रहा है. फॉर एग्जांपल आपके जो ये कह सकते हैं अभी जो मीटिंग कर रहे हैं जूम और या माइक्रोसॉफ्ट टीम, तो जूम कह सकते हैं कि कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम इस्तेमाल करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है. या आपका जो है वो गूगल क्रोम है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो कहेंगे गूगल क्रोम ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट है, वो जल्दी जो है वो अपना रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करके दे देता है, जल्दी ब्राउजिंग प्रोवाइड करके देता है कंपेरेटिवली टू इंटरनेट एक्सप्लोरर. ठीक है. इंटीग्रिटी, द एक्सटेंट टू विच एक्सेस टू सॉफ्टवेयर और डेटा बाय अनऑथराइज्ड पर्सन कैन बी कंट्रोल. इंटीग्रिटी मीन्स कि कोई चीज़ उसको मॉडिफाई ना कर सके, कोई चीज़ जो है वो प्रॉब्लम न क्रिएट कर सके उसकी जो है वो बिहेवियर में, वो अपनी इंटीग्रिटी जो है मेंटेन करें. इंटीग्रिटी मीन्स ट्रस्ट जो है अपना मेंटेन करें. यूजेबिलिटी, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लर्न, ऑपरेट, प्रिपेयर, इनपुट फॉर एंड इंटरप्रेट आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. यूजेबिलिटी कि हम किस तरह से इफेक्टिवली इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकें ताकि वो उसको सीख सकें किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, ऑपरेट आसानी से कर सकें, उसमें इनपुट हम कर सकें और उसका जो आउटपुट जो जनरेट हो रहा है वो हम इंटरप्रेट बड़े आसानी से कर सकें. इसको क्या कहते हैं यूजेबिलिटी. कितनी आसानी से हम इसको सीख सकें, ऑपरेट कर सकें और प्रिपेयर कर सकें जो है वो इनपुट और उससे आउटपुट जनरेट कर सकें. जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ कहेंगे वो ज़्यादा यूजेबिलिटी उसकी है कंपेरेटिवली जो आपका लिनक्स है या जो है वो मैकिंटोश है. क्यों? क्योंकि वो बहुत आसान है काम करने के हवाले से कंपेरेटिवली अदर ऑपरेटिंग सिस्टम. मेंटेनेबिलिटी, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोकेट एंड फिक्स एरर्स इन ए प्रोग्राम, तो उसको जो है वो एरर्स जनरेट हो या फिक्स हो तो उनको लोकेट करें, उसको फिक्स कर सकें ताकि उसको मेंटेन कर सकें. जिस तरह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ जैसे इंस्टॉल करते हैं तो उसके अपडेट्स आती रहती है, उसको मेंटेन हो रहा होता है. तो उस चीज़ को एरर्स जो उनको मिलते हैं, फीडबैक मिलता है, उनको
अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे घर में सॉफ्टवेयर में जो है उसको अपडेट इंस्टॉल करने के बाद वो एरर लोकेट करके उसको फिक्स कर सकता है, अदर देन कि हम वो विंडोज़ दोबारा उसमें से कोडिंग को ठीक करके दोबारा नया विंडोज़ जो है वो रिलीज़ करें ताकि हम डाउनलोड करें। इससे बेहतर है कि वो ऐसे डिज़ाइन बनाएं कि वो सिर्फ वो अपडेट में भेजे और हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस चीज़ से करेक्ट हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई एन ऑपरेशनल प्रोग्राम, कि हम एक रनिंग प्रोग्राम को जो है कितना ऑन द फ्लाई उसको मॉडिफाई कर सकें, उसको क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स कि ऑन द फ्लाई ऑन द रन टाइम इसको ऑपरेशनल एनवायरनमेंट उसको मॉडिफाई कर सकें। टेस्टेबिलिटी, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू टेस्ट अ प्रोग्राम टू इंश्योर दैट इट परफॉर्म्स इंटेंडेड फंक्शन। द एफर्ट, ताकि हम प्रोग्राम को टेस्ट कर सकें ताकि वो अपना अप्रोप्रिएट फंक्शन जो है कर सकता है, ऐसा नहीं कि हम प्रोग्राम को टेस्ट ही ना कर पाएँ। पोर्टेबिलिटी, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द प्रोग्राम फ्रॉम वन हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इन्वायरमेंट टू अनदर, मीन्स हम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एक हार्डवेयर से एक दूसरे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में हम इसको ईजिली ट्रांसफ़र कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जावा का जो फाइल है, जावा की जो लैंग्वेज है वो कह सकते हैं पोर्टेबल है, क्योंकि वो हम जावा की जो फाइल बना के आराम से हम विंडोज़ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैकिन्टोश पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और लिनक्स पे भी यूज़ करते हैं क्योंकि जेवीएम वहाँ पे है। जेवीएम जहाँ पे भी जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे होगा तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Reusability, the extent to which a program can be reused in other applications related to the packaging and scope of the functions that the program performs, कि उस प्रोग्राम को हम कितने सेवरल एप्लीकेशंस में जो है वो पैकेज कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कहेंगे रीयूजेबिलिटी, कि उस प्रोग्राम में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का मिल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू कपल वन सिस्टम टू अनदर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई स्पेशलाइजेशन दैट आई हैव डन इन माई PhD, दैट वाज सॉफ्टवेयर इंटरऑपरेबिलिटी, कि एक सिस्टम जो काम कर रहे हैं उन सिस्टम्स को आपस में किस तरह से जो है वो इंटर ऑपरेट करें विदाउट मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, कि उन सिस्टम्स को मॉडिफाई किए बगैर हम किस तरह से जो है वो उनको इंटर ऑपरेट कर सकते हैं आपस में ताकि वो अपने साथ डेटा शेयर कर सकें। सो दिस इज़ द गाइस द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस पार्ट 1 लेक्चर। अच्छा, दूसरा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटरऑपरेबिलिटी में फ़र्क क्या होता है? इंटीग्रेशन में सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करते हैं ताकि आपस में वो कम्युनिकेट कर सकें। इंटरऑपरेबल में हम दो सॉफ्टवेयर्स को मॉडिफाई नहीं करते बल्कि बीच में कोई इंटरऑपरेबल लेयर जनरेट करता है ताकि वो आपस में कपल हो सकें विदाउट मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर। तो सो गाइस, दिस इज एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस पार्ट 1 lecture. This was little complex, but it contained too much of a concept and very dry. But the next lecture would be more technical and more easy to understand. That is related to the software testing, which is also part of the software quality assurance. Software quality assurance maintain इस तरह ऐसे कर सकते हैं जब उसकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करेंगे। जब टेस्टिंग करेंगे तभी हमें एरर्स और डिफेक्ट्स का हमें पता चलता रहेगा। So guys, see you for the next lecture in software testing. Okay guys, take care. Allah Hafiz.